بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیمم کا ذکر ہو رہا تھا اور کن حالات میں تیمم واجب ہو جاتا ہے وہ آپ کے ساتھ میں سب کچھ بیان کر چکی ہوں۔ چند ایک احادیث جو رہ گئی تھی وہ اب آپ کے ساتھ میں بیان کرتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی مسجد کے باہر نماز ادا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ جب اسلام پھیر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندر بلایا اور اسے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا جی مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا تو باجماعت نماز ادا ہمارے ساتھ تم نے کیوں نہیں کی؟ اس دیہاتی نے کہا میں حالت جنابت سے ہوں، اس لیے میں اندر نہیں آ سکا اور میں نے مسجد میں نماز ادا کرنا مناسب نہیں جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت فرما دی۔ اسے کہا اگر ایسا ہو تو تم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہو، یہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ حالت جنابت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں تم تیمم کر سکتے ہو، یہ چیز ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیمم کا طریقہ جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ صرف ایک دفعہ زمین پر جس زمین پر خاک ہوتی تھی، مطلب جو مٹی اڑتی ہے نا وہ والی، اس کے اوپر ہاتھ مارتے، دونوں ہاتھ اس کے اوپر ہاتھ مارتے اور پھر ان کو تھوڑا سا جھاڑ پھونک کر کے تو وہ ایک دفعہ منہ پہ مارتے، پہلے بازوؤں پر مارتے کوہنیوں تک۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب فرسٹ ٹائم یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا تھا تو تب انہوں نے کندھوں تک جو ہے وہ کیا تھا، مسح کیا تھا کندھوں تک، مطلب اس مٹی کے ساتھ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس مٹی کے ساتھ انہوں نے ہاتھ خاک آلود کر کے ان کو بغلوں تک ملا تھا۔ لیکن اس سے بھی جو کم تر رخصت ہے پھر وہ دے دی گئی، وہ یہ کہ ہاتھوں کو ایک دفعہ زمین پر مارنا ہے پاک مٹی سے۔ سب سے بہتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر مٹی تیمم کے لیے کھیت کی مٹی ہے، کیونکہ یہاں سے رزق اگتا ہے، اس وجہ سے۔ تو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے مقامات پر ہے، ہم سب کو پتہ ہے، علم ہے کہ جو ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے جو رخصتیں اللہ کریم نے دی ہیں وہ ان میں سے مین جو ہے وہ یہ تین ہے۔ ایک شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تمام زمین کو ہمارے لیے جائے نماز کر دینا، اور مٹی کو ہمارے لیے پانی کی جگہ پر پاک کر دینا۔ ہمارے لیے مٹی کو پاک کر دیا گیا کہ جہاں ہمیں نماز کا وقت پیش آئے ہم مٹی کے ساتھ تیمم کر کے خواہ ہم جس مرضی حالت پہ ہیں ہم ادا کر سکتے ہیں، سوائے حائضہ کے، یہ چیز ہے۔ مرد ادا کر سکتے ہیں کسی صورت، ہر صورت ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ لیڈیز کو یہ چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ قضا ادا کر سکتی ہیں۔ لیکن آنیسٹلی یہ ٹاپک لمبا ہے، یہ انشاءاللہ شاید اسی سورہ میں آئے، نہیں تو سورہ نور میں لازمی آئے گا اور سورہ معاہدہ میں بھی آئے گا انشاءاللہ، یہ چیز ہے۔ تو کیونکہ قضا کا ذکر ہے، لڑکیوں نے تو گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے، ان کو تو قضا ادا کرنے کا کوئی نہیں ہوتا، زیادہ تر مسئلہ مردوں کا ہوتا ہے کہ وہ قضا، ان کو باہر کام کاج ہونا، سارا کچھ، یہ سارے سلسلے ان کے چلتے رہتے ہیں، اس لیے مردوں کو فوراً وہیں پر تیمم کا ذکر ہے۔ کیونکہ اب عورت تو باہر نماز ادا نہیں کر سکتی، باہر سے مراد یہ کہ کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے تو عورت تیمم کر کے نماز ادا کر لے، کیونکہ غیر مرد کے سامنے تو عورت کی نماز نہیں ہوتی نا، یہ چیز ہے۔ اس میں مختلف جو ہے وہ صورتیں نکلتی ہیں، مختلف جو ہے اس میں وہ ساری چیزیں نکل آتی ہیں۔ ہوا یوں، حضرت ایک روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک زمین پر مارے اور ان کے ساتھ چہرے کا مسح کیا اور پھر دوبارہ ہاتھ مارے اور اس سے پھر بازوؤں کا کوہنیوں تک کیا۔
हज़रत इब्ने सुमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं कि हम लोग एक दफ़ा बाहर थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब कर रहे थे, तो मैंने उनको सलाम किया। वो हवा कहीं से आए हों या उनकी मुलाकात हो गई हो, वैसे ही बाय चांस मुलाकात हो गई हो, तो आप अलैहिस्सलाम जो है वो पेशाब कर रहे थे। वहाँ पर एक दीवार थी, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया ड्यूरिंग तयम्मुम वगैरह, उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। आपने पहले अपने दोनों हाथ दीवार के साथ रगड़े, उसके बाद आपने मिट्टी के साथ तयम्मुम फरमाया। एक दफ़ा मुंह का मसा फरमाया और दूसरी दफ़ा कोहनियों तक, एल्बोस तक जो है वो कोहनियों तक जो है वो मसा किया। ये क्लियर हो गया कि मसा का तरीका क्या है, मसा किस तरह से करना है, ये चीज़ है। लेकिन हाथों को मिट्टी से आलूद करके इतना उसको हाथों को नहीं झाड़ना कि वो मिट्टी नज़र ही ना आए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है इतनी सारी मिट्टी इस्तेमाल करनी है जो थोड़ी बहुत जो है वो चेहरे पर या बाजुओं पर लगी हुई नज़र आए, हाथों पर लगी हुई नज़र आए। बाज़ उलमा कहते हैं कि सिर्फ हाथों को जो है वो मिट्टी से उस हाथों तक का मसा करना होगा, लेकिन हकीकतन जो हमने यहाँ पढ़ा है वो कोहनियों तक है, और जमहूर उलमा का इसमें इजमा भी है कि यहीं तक करना बेहतर है। हुआ यूँ, एक दफ़ा हज़रत सईदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक सहाबी आए, वो थे सहाबी ही, लेकिन ये कि उनका नाम यहाँ पर एक तो नहीं लिखा हुआ। एक उनके पास ना सहाबी आए, इजाज़त मांगी कि हालत जनाबत के बाद क्या मैं तयम्मुम कर सकता हूँ, यानी कि लास्ट नाइट मैं हालत जनाबत में हो गया, तो क्या उसी सुबह को मैं तयम्मुम के ज़रिए से नमाज अदा कर सकता हूँ? तो आपने मना फरमा दिया, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने मना फरमा दिया। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पर मौजूद थे, महफिल में बैठे हुए थे, तो आपने फरमाया या अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको मालूम नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी इजाज़त दे दी थी? तो आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया पानी ना होने की सूरत में इजाज़त दी थी, ये तो नहीं कि पानी है तो फिर गुस्ल ना किया जाए और ऐसे ही तयम्मुम कर लिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। खैर एक तो फिर जो है कोई शख्स आया और उन्होंने कहा कि हम लोग जुम्बी थे, तो पानी हमें नहीं मिला था, लेकिन मैं मिट्टी में लोट पोट हुआ और नमाज़ पढ़ ली। फिर जब हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये काफ़ी है, तुम लोगों के लिए काफ़ी था कि तुम्हारे पास सफ़र में पानी नहीं था। अब बात यहाँ पर फिर सफ़र की आ गई है ना, कि सफ़र के दौरान ही तयम्मुम जो है ना वो जायज़ होगा, या वो वाली सूरतें बीमारी की जो मैंने आपके साथ कल बयान की हैं, यानी कि ज़ख़म में पीप पड़ जाने का ख़तरा हो, या कोई ऐसा बुज़ुर्ग बंदा हो जो उठ ना सकता हो, उसको ख़तरा हो कि मैं मर जाऊँगा अगर ठंडे पानी से नहाऊँगा, गुस्ल करूँगा, ये चीज़ है। वो सारी मैंने आपके साथ सूरतें बयान कर दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इसकी रुख्सत दे दी थी, लेकिन हज़रत सईदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह और हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि सूरह निसा जब मैंने फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह को सूरह निसा की ये वाली आयत करीमा याद दिलाई, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो कि लोग सर्दी में गुस्ल करने के ना करने की वजह से तयम्मुम करके ही नमाज अदा कर ले, इसलिए मैं ऐसी रुख्सत उनको नहीं देना चाहता था, क्योंकि हो सकता है कि कल को ज़माने में ये सब हो, सर्दी की वजह से लोग गुस्ल नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ तयम्मुम करके ही नमाज अदा कर लिया करेंगे, ये चीज़ है। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 3 चीज़ों की और बाज़ मुकामात पर 5 जगहों की
नंबर 1, महीने की मुसाफत, रमज़ान करीम का महीना। ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद और पाक करने वाला बना दिया गया। मेरे उम्मती जिनका जहाँ वक्त हो जाए वो वहीं पर नमाज अदा कर सकते हैं। तमाम ज़मीन को जाए नमाज बना दिया गया, जाए नमाज की जगह बना दिया गया, और तमाम मिट्टी को, ज़मीन की मिट्टी को पाक कर दिया गया कि इसको तयम्मुम के लिए, वज़ू के लिए पानी ना मिलने की सूरत में इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया गया और मेरे लिए शिफात यानी सिफारिश को बाकी रखा गया। मैं क़यामत में भी इनकी सिफारिश कर सकूँगा। ये चीज़ है, क्योंकि दुनिया में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मांगा था वो ये मांगा था कि जिस तरह दूसरी उम्मतें जो है वो बंदर और खंजीर और रीछ वगैरह बन जाया करते थे, ऐसे अल्लाह ताला हमारी गिरफ्त ना फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस अजाब से बचा के रखे, आमीन। होता यूँ है कि इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि एक दफ़ा सफ़र पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद और सहाबा कराम भी थे। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हार गुम हो गया। वो हार इन्होंने इस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह से लिया था, अपनी यानी बहन से लिया था, और वो हार जो है वो यमनी मोतियों का बना हुआ था। यमनी मोतियों से बहुत महंगा होगा, मुमकिन है। उस हार को ढूंढने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको हुक्म दिया, खुद भी ढूंढने लगे वो, लेकिन वो नहीं मिला था उनको, उस टाइम नहीं मिला था, बाद में मिल गया था। कैसे मिला था वो भी मैं आपको बताती हूँ। हुआ यूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह की रान मुबारक पर आराम फरमा रहे थे। नमाज का वक्त हो गया। हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह का वहाँ से गुज़र हुआ, तो आपने फरमाया उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को डांटा, काफ़ी डांटा, बल्कि उनको ना झंझोड़ा भी। लेकिन सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं हिली नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर लेटे हुए थे। ये चीज़ है। इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज का टाइम भी हो गया है, रात का आखिरी हिस्सा था ये, नमाज का टाइम होने लगा, तो अभी तक इसने नमाज अदा नहीं की थी। फिर ये रुख्सत दे दी गई, तब ये आयत करीमा नाजिल हुई और तयम्मुम का जो है ना वो हुक्म दे दिया गया। हज़रत सहाबी हैं यहाँ पर, हज़रत उसैद बिन खुज़ैर रज़ी अल्लाह कहते हैं कि ए आले अबू बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सी बरकतें हैं तुम पर, कि जब जब सईदा आयशा सिद्दीक़ा के साथ इस तरह का कोई हैपन होता है तो हमारे लिए उसमें बहुत सारी छूट, बहुत सारी रुख्सत हमें यानी कि उम्मत मुहम्मदिया को मिल जाती है। ये चीज़ है। हज़रत फरमाते हैं, हज़रत इस्ला बिन शरीक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हाँक रहा था, रात इंतहाई सर्द थी और मैं जुम्बी हो गया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का इरादा फरमाया तो मैंने आपकी ऊँटनी को हाँकना पसंद नहीं किया कि हालत जनाबत से हूँ तो मैं इनकी ऊँटनी कैसे चला सकता हूँ, यानी कि उन्होंने उसको मोअज़्ज़ज़ समझा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को मोअज़्ज़ज़ समझा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की ऊँटनी को हाँकना नहीं चाहते थे उस हालत में। कहते हैं कि मैंने अपने एक सहाबी रसूल थे, वो भी, उनको मैंने कहा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को हाँको। तब तक मैंने पानी को गर्म किया और मैंने गुस्ल कर लिया, पानी को गर्म करके। क्यों गुस्ल किया था? ताकि ऊँटनी को पकड़ सकूँ मैं, ये चीज़ है। लेकिन तब ये आयत करीमा नाजिल हो गई। ये हज़रत इस्ला बिन शरीक रज़ी अल्लाह की रिवायत है, ये चीज़ है। ये तफसीर हो चुकी है यहाँ पर मुकम्मल। बराए मेहरबानी सदका जारी की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि नमाज किसी सूरत मुआफ़ नहीं है। हर तरीके में, हर तरह से आपको नमाज के बारे में छूट दे दी गई है। बराए मेहरबानी सदका जारी की नीयत से शेयर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।